ڈاکٹر سلام صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. صدق اللہ العظیم. قابل احترام صدر مجلس پروفیسر اسحاق صاحب، محترم انتظار نعیم صاحب، جناب خالد خان صاحب، اجمل فاروق نظوی صاحب، ہمارے مسجد کے پیش امام صاحب، ہمارے محترم دوست انجینئر عبد المنان صاحب، اساتذہ کرام، دیگر حاضرین طلباء، آج ہم مرحوم محترم تابش مہدی صاحب کے تعزیتی نشست میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تابش مہدی صاحب کی خبر کو پرنور فرمائے، جنت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کی کوششیں، کاوشیں دین کی راہ میں جو بھی ہوئے ہیں اس کو قبول فرمائے، اس کا بہترین عمل بدل عطا فرمائے. کسی کی بھی بدائی ان کے متعلقین کے لیے دکھ کا باعث، درد کا باعث ہوتی ہے. جب انسان ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو فیملی ممبرس کے لیے، دوست و احباب کے لیے، ساتھیوں کے لیے یہ بات بے انتہا دکھ کا باعث، درد کا باعث ہوتی ہے. فیملی کے افراد ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ ایصال ثواب کے اعمال کا انجام دیتے ہیں، غربا کو کھانا کھلانا، ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ خیرات کرنا یا کچھ نیک کام کرنا. لیکن تعزیتی نشست ہر عام آدمی کے لیے منعقد نہیں ہوتی. خاص لوگ جن کا اللہ کے بندوں میں خاص مقام ہے، انہی کے لیے ایک تعزیتی نشست منعقد ہوتی ہے. اور اللہ کے پیارے ہونے والے اس بندے کے یاد میں اس کے دوست و احباب اور دیگر لوگ اس کے لیے دعا کرنے کے لیے، اس کے اچھے کارناموں کو یاد کرنے کے لیے اس طرح کی نشست منعقد کرتے ہیں، تاکہ اس شخص کے لیے ان کی دل میں جو مقام ہے اس کے لیے ایک آؤٹ لیٹ مل سکے. محترم تابش مہدی صاحب ایک بڑے آدمی ہیں. ان کے تدفین میں، نماز جنازہ میں شرکت کا موقع ملا تھا. اسی دن ظہر کے آس پاس میں اورنگ آباد سے آیا تھا، خبر ملی. پھر ہم لوگ یہاں عصر کی نماز ادا کر کے شاہین باغ کے قبرستان میں پہنچے تو میں نے وہاں دیکھا جس طرح لوگ آئے وہاں، اور جس طرح کے لوگ آئے تو اس سے اندازہ ہوا کہ ان کا حلقہ پہچان اور پھر حلقہ احباب کتنا بڑا، وسیع اور مؤثر ہے. تابش مہدی صاحب کو میں ایس آئی او میں جب داخل ہوا تھا، ان کی کتاب پڑھا تھا، اس وقت سے جانتا ہوں. پھر کبھی کبھی اسی طرح آل انڈیا ارکان کے اجتماع میں یا کسی بڑے اجتماع کے موقع پر ملاقات ہوتی رہی. لیکن جب میں گزشتہ سال انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز جوائن کیا تو یہاں پر تجوید کے استاد کی حیثیت میں خدمات انجام دے رہے تھے. پھر ملاقاتیں ہوئی، لیکن زیادہ عرصہ میں ان کی رفاقت میں گزر نہیں سکا. 1 مہینہ 2 مہینے وہ جو ہے میں جوائن ہونے کے بعد یہاں تجوید پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے. میں ان کو ایک اچھا استاد پایا. وقت سے پہلے آ جاتے، پورے اطمینان یکسوئی کے ساتھ کلاس کو انگیج کرتے تھے، پورا وقت طلباء کے ساتھ بتاتے، انڈیویجول اسٹوڈنٹ پر جو ہے توجہ دیتے تھے. اور پھر ہمارے ساتھ بیٹھ کر چائے وغیرہ کا موقع بھی ملتا تھا تو چائے بھی پیتے تھے، باتیں بھی کرتے تھے، اپنے صحت کے بارے میں باتیں بتاتے تھے. بتایا انہوں نے کہ ان کا بائی پاس ہوا. تو ان کا کارنامہ جو ہے صرف ایک ڈائمینشن میں نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی تھے. ایک پوئٹ تھے، ادیب تھے، اور پھر اس حیثیت سے میں بھی ان کو جو ہے ادارے ادب اسلامی کے محفلوں میں بھی ہمیشہ یاد کیا جاتا رہا. اور بڑے آتھر بھی تھے. معلوم ہوا کہ ان کے
50 किताबें पब्लिश हुई हैं, जो कि एक मामूली बात नहीं है। और ये खुद उनके लिए एक सवाब जारिया का बायस बनेगा। जो इल्म छोड़कर गए हैं, जिन तलबा को उन्होंने इल्म सिखाया है, कि उनके लिए जो है सवाब जारिया के तौर पर ये सवाब जो पहुँचता रहेगा। एक ऑथर, एक क्रिटिक, एक अच्छे उस्ताद और एक अच्छे दोस्त और फिर लोगों से अच्छे ताल्लुकात बनाने वाले एक शख्स की हैसियत में उनकी ज़िंदगी गुजरी है। मैं जो है अल्लाह से फिर से दुआ करता हूँ कि उनके फैमिली मेम्बर्स को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए और आखिरत में आला मुकाम अता फरमाए, उनकी खिदमत को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह ताला। और भी जो उनके करीबी लोग हैं जो इस महफिल में मौजूद है, उनकी ज़बानी हम उनके सिलसिले में बातें सुनेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी कोशिशें दीन की राह में कबूल फरमाए और उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। हज़रात, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे यहाँ डॉक्टर ताबिश महदी साहब वैसे तो उस्ताद की अपनी खिदमत पेश कर रहे थे, ख़ासतौर पर तजवीद और उर्दू ज़बान के उस्ताद की हैसियत से 2018 से बाकायदा अपने यहाँ ज्वाइन किया था और आखिरी क्लास उन्होंने 29 जुलाई की थी। 30 जुलाई को उन्होंने मैसेज किया कि तबीयत की खराबी की वजह से आज मैं हाजिर ना हो सकूँगा। बहुत अलर्ट रहते थे, कभी कभी हम लोग मिस कर देते थे उनको इन्फॉर्म करना, लेकिन वो खुद पूछते थे कि कल का प्लान क्या है, क्या मंसूबा है, क्या शुरू है। फिर दूसरे दिन 31 तारीख को भी कहा कि मेरी तबीयत आज भी ख़राब है, मैं नहीं आ सकूँगा। तो मैंने लिखा कि डॉक्टर साहब आराम कीजिए, अल्लाह ताला जल्द शिफा अता फरमाए, इंशाअल्लाह हम इसको मैनेज करते हैं। उसके बाद 1 अगस्त को फिर किया कि अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत तो ठीक है, चूँकि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, इसलिए अगले हफ्ते से हाजिर होऊंगा इंशाअल्लाह। यानी ये आखिरी क्लास उनकी थी 29 जुलाई को। फिर मैंने वही जवाब दिया जो ऊपर लिखा। 10 सितंबर को मैंने उनको, आप सबको मालूम होगा बहुत से लोगों को कि हार्ट की सर्जरी उनकी तकरीबन 1-1.5 साल पहले हुई थी और उससे वो निकल आए थे, रिकवरी हो गई थी। उसके बावजूद तबीयत में उतार चढ़ाव, नशे व फराज रहा, फिर भी वो पाबंदी से आते थे। और इस बार में हम लोग को ये पूरा यकीन था कि अल्लाह ताला फिर इस बार उनको दोबारा वापस भेजेगा। तो उनकी जो तबीयत ख़राब हुई, जो आखिरी मैसेज हमने पढ़ के बताया, उसके बाद मुलाकात नहीं हुई। मैंने 10 सितंबर को लिखा कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, डॉक्टर साहब कैसे हैं, आपकी खैरियत उबैद भाई और अजमल भाई से मालूम होती रहती है। अब पता चला कि आपसे बिलमुशाफा मुलाकात हो सकती है, आपको अगर जहमत ना हो तो घर पर आकर मिलना चाहते हैं। डॉक्टर हसन रजा साहब भी कई मरतबा पूछ चुके हैं मिलने की ख्वाहिश, मुलाकात कब मुमकिन है। तो उन्होंने लिखा, आप गौर कीजिए वो जवाब, जबकि वो बीमार हैं। वालेकुम सलाम अजीज़ी, अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बतदरीज ठीक हो रही है। मैं बावजूद कल देवबंद आ गया हूँ। सितंबर का बड़ा हिस्सा यहीं गुजार कर दिल्ली आऊँगा। यकीन है कि हालात ठीक रहेंगे और तमाम मसरूफियात बहाल हो जाएंगी। मोहतरम भाई हसन रजा की खिदमत में भी हदिया सलाम और कलमा तशक्कुर पेश करें। वस्सलाम ताबिश महदी। आखिरी उनसे बात हुई और जब उनका इंतकाल की खबर सुनी तो मैं खुद और हमारे बहुत से करीब के अंदर ये कसक और ये तरह से वो अभी भी गिल्टी की फीलिंग हुई कि डॉक्टर साहब से वही कि कैसे मुलाकात हो सकती है, क्या है, तबीयत कैसी है। देवबंद चले गए तो मुलाकात नहीं कर सके और तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा मेरे जहन और दिमाग पर बल्कि जिस्म पर उसका असर रहा। तो अल्लाह ताला से मैंने फिर दुआ की कि अल्लाह ताला ये कैफियत ख़त्म कर दे, चूँकि सारी चीज़ें तो किस्मत से होती हैं और अभी तक मग़फ़िरत की दुआएं आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जो उनके चाहने वाले हैं वो कर रहे हैं उनके लिए। तो चूँकि हमारे पास एकेडमिक और एक उस्ताद हैं डॉक्टर खान यासिर साहब, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और इज़हार ख्याल डॉक्टर खान यासिर फैकल्टी तो थोड़ा ये साहब। डॉक्टर ताबिश महदी साहब एक अजीम और मुख्तलिफुल जहाद शख्सियत उनकी रही है
اور ہم سب کی یہ خوش قسمتی رہی کہ وہ اس ادارے سے عرصے تک وابستہ رہے اور طلبا کو اور بلکہ ہم سب کو ان سے استفادے کا اور تبادلہ خیال کا بھرپور موقع ملا۔ ان کی شخصیت کی جو مختلف جہتیں ہیں اس میں ایک جہت اردو زبان و ادب کی ہے جس کی انہوں نے بھرپور خدمت کی۔ اس میں اگر نثر کی طرف دیکھیں تو ان کے خاکے، ان کے تنقید اور تحقیق پر مبنی کتابوں کی اچھی خاصی تعداد ہے۔ شعر کی حیت میں دیکھیں تو نعت اور غزل کی صورت میں کئی ساری کتابیں ان کی ہمیں ملتی ہیں۔ بالخصوص نعتیہ شاعری کے حوالے سے وہ ایک باضابطہ ایک ریفرنس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی نعتیہ شاعری پر اگر ہم غور کریں، ویسے تو یہ ادیبوں کا کام ہے لیکن کچھ چیزیں بالکل ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ ان کی نعتیہ شاعری میں ہمیں فکری پختگی نظر آتی ہے، عقیدے کی مضبوطی نظر آتی ہے، اور انحرافات جو ہیں وہ نہیں نظر آتے ہیں جو عام طور پر بہت سارے شاعر جوش میں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، وہ نہیں ہمیں تابش میں کتاب میں نظر آتا ہے۔ خود ان کا شعر ہے کہ یہ عرض نات ہے تابش سنبھل سنبھل کے چلو، غفور شوق میں کوئی نہ بھول ہو جائے۔ دوسری خصوصیت ان کی نعتیہ شاعری کی یہ ہے کہ اس میں بڑی سلاست ہے، بڑی روانی ہے، بہت آسان زبان استعمال کی انہوں نے، ابہام اور پیچیدگی سے ان کی شاعری دور نظر آتی ہے۔ مثلاً ان کے اشعار ہیں کہ رہتی ہے سدا پیش نظر پیروی ان کی، جو اچھا لگے ان کو وہ کام اچھا لگے ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت آسانی کے ساتھ انہوں نے کہہ دیا ہے۔ دیکھا ہے ہر ایک اسم کو آئین کو لیکن مجھ کو میرے آقا کا نظام اچھا لگے ہے۔ بڑی سلاست اور روانی کے ساتھ بہت بڑی بڑی باتیں وہ کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح ان کی نعتیہ شاعری کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں پیغام عمل ہے، اس میں فوڈ فار تھاٹ ہے۔ انہی کا شعر ہے کہ نام نبی تو ورد زباں ہے، ناؤ مگر مجدار میں ہے، سوچ رہا ہوں اب بھی یقیناً کوئی کبھی کردار میں ہے۔ اسی طرح سے ان کی نعتیہ شاعری کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام سے بھی محبت، بالخصوص خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اردو زبان و ادب کے حوالے سے املا اور تلفظ پر ان کی جو خصوصی توجہ تھی اور اجتہادی آرا تھی وہ بھی ساتھیوں کے درمیان اور اہل علم و ادب کے درمیان گفتگو کا موضوع رہتی تھی۔ یہ ان کی شخصیت کی ایک جہت تھی جس کو بہت مختصر انداز میں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ ان کی شخصیت کی ایک اور جہت تھی جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ ان کا قرآن سے تعلق ہے۔ تجوید اور فن قرأت کے حوالے سے ان کی جو استادی تھی اس کو ہم سب تسلیم کرتے ہیں، یہاں پر باقاعدہ وہ استاد بھی تھے۔ اس کے علاوہ یعنی جامعۃ الفلاح اور اکیڈمی میں تدریسی خدمات کے علاوہ جب وہ ان کو ویکلی اجتماعات میں اور جگہوں پر ملتے تھے تو یہ پتہ چلتا تھا کہ قرآن کے حوالے سے ان کا آؤٹ لک کیا ہے۔ تو جن دروس قرآن میں، دروس قرآن عام طور پر پارٹ ہوتے ہیں ویکلی پروگرامس کا، نقطہ آفرینی نہیں ہوتی تھی اور عمل پر فوکس ہوتا تھا، سادگی کے ساتھ قرآن کے پیغام کو بیان کیا جاتا تھا، ان دروس قرآن کو بہت پسند کرتے تھے اور بہت زیادہ نقطہ آفرینی کو اور علمی مباحث کو یہ سب سے وہ ذرا ان سے دور رہنا چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ قرآن کے پیغام کو عمل کے لیے عوام کے سامنے پیش کرنا، عمل پر لوگوں کو ابھارنا، یہ قرآن کا بنیادی مقصد ہے۔ ان کی شخصیت کی ایک تیسری جہت جسے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ استاد اور مربی کی حیثیت سے ان کی بات ہے۔ وقت کی پابندی ان کی شخصیت میں، ان کے اخلاقیات میں، ان کے کردار میں، ان کی پرسنالٹی میں رچی بسی تھی۔ کلاس میں وقت کے پابند تھے، ہفتہ وار پروگرام میں وقت کے پابند تھے، ہر کام میں وہ وقت کے پابند تھے۔ ایک مثال یہ ہے کہ ایک عرصہ قبل دادا کا انتقال ہوا، ڈاکٹر خلیل احمد صاحب، اور تابش مہدی صاحب سے ان کے دیرینہ تعلقات تھے۔ ان پر ایک شمارہ نکالنے کا ارادہ کیا حیات نو میں اور ان کو ڈیڈ لائن دی تابش مہدی صاحب کو، جو بڑی ٹائٹ ڈیڈ لائن تھی۔ ڈاکٹر تابش مہدی صاحب نے اس ڈیڈ لائن کو میٹ کیا، میں تک اس وقت مضمون نہیں لکھ پایا تھا اور وہ شمارہ تو مختلف وصلتوں کی نظر ہو کے آج تک شائع نہیں ہو پایا، لیکن تابش مہدی صاحب نے وقت پر اپنا مضمون سبمٹ کیا اور بار بار مجھ سے پوچھتے رہے اور ذمہ داران کی کوتاہی کا رونا روتے رہے کہ کیوں وہ شمارہ شائع نہیں ہوا۔ ہر کام میں وقت کی پابندی ان کی شخصیت کا ایک خاصہ تھا۔ فن میں مہارت رکھتے تھے، ایک استاد کے لیے ضروری ہے کہ جس فن کو وہ پڑھائے اس میں مہارت رکھے۔ وہ طلبہ کو صرف فن نہیں پڑھاتے تھے بلکہ ادب، تہذیب اور تمیز بھی سکھاتے تھے، بہت دور تک تعلقات مینٹین کرتے تھے، طلبہ کو غلطیوں پر ڈانٹتے بھی تھے، مٹھائی بھی کھلاتے تھے سلیبس کمپلیٹ ہونے پر۔ تو یہ جو اپناپن تھا ان کا، یہ بہت ہی شاندار قسم کا اپناپن تھا جس میں بہت سارے لوگوں کے لیے اسباق ہیں۔ تو ایک بزرگ کے ساتھ جس طرح سے لوگ انٹریکٹ کرتے ہیں ویسے انٹریکٹ ہم ان کے ساتھ کرتے تھے۔ تو بزرگ جس سے ڈانٹ کھانے کا خوف ہو یا دیکھ کر ہیبت طاری ہو جائے اس سے ذرا لوگ دور دور رہتے ہیں، لیکن ایسا بزرگ جو آپ کے نخرے اٹھائے اس سے لوگ قریب ہوتے ہیں، طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ تو ایسا ہی معاملہ کچھ تابش مہدی صاحب کے ساتھ تھا، اور جب وہ کسی وقت موڈ میں ہوتے تھے اور اپنی زندگی کی یادیں شیئر کرنے پر آتے تھے تو بہت سارے اسباب، بہت ساری باریک بینی کے ساتھ بڑی بڑی باتیں بہت آسان انداز میں بتاتے چلے جاتے تھے۔ لوگوں کو اپریشیٹ کرنا، ان کی تعریف کرنا، یہ ان کی شخصیت کا ایک خاصہ ہو گیا تھا۔ اپنے طلبہ کی تعریف، اپنے ساتھیوں کی تعریف، اور بہت یعنی یہ بہت ایک نمایاں پہلو تھا۔ مجھے یاد ہے کہ مختصر قسم کے مضامین جو زندگی نو میں میرے چھپنے شروع ہوئے تو بہت اپریشیٹ کرتے تھے اس پر۔ جب ملاقات ہوتی تھی تو بتاتے تھے کہ وہ جب بلدیہ میں تھے تو کس طرح سے رشتے میں میری بڑی بہنوں کو، پھوپھیوں کو انہوں نے پڑھایا تھا، بار بار ان کا تذکرہ کرتے تھے اور خیریت پوچھتے تھے۔ ایک پروجیکٹ ان کو ملا تھا IAS کی طرف سے، اس میں سیرت کی کچھ کتابچے تیار کرنے تھے۔ بہت اصرار اور محبت کے ساتھ انہوں نے کتابچہ اس کو سونپ دیا کہ یہ آپ کو لکھنا ہے،
और मेरी अपनी ग़फ़लत और कोताही कि बहुत देर होती रही। मैंने बार बार मतलब हिम्मत हार दी। मुझे मुश्किल मौजूद लग रहा था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माशी उसके पर लिखना। मैंने कहा कि मैं नहीं लिख सकूँगा, लेकिन उन्होंने अपना मोहब्बत भरा इसरार और सब्र तहम्मुल से वो लिखवा लिया मुझसे। तो ये जो उनकी शख्सियत का खासा है, ये एक बहुत बड़ी खुसूसियत उनकी हमें नज़र आती है। तो अपनी बात को अगर मैं समराइज़ करूँ तो बिलखुसूस तलबा मेरे सामने हैं कि उनकी शख्सियत से हम ये सीख सकते हैं कि मेहनत कैसे की जाती है। ज़बान व अदब के मामले में जिस तरह से उन्होंने मेहनत की, मुख्तलिफ रिसालों की इदारत में जिस तरह से उन्होंने मेहनत की, तहक़ीक़ में जिस तरह से मेहनत की, बहुत बड़े होने के बाद जिस तरह से उन्होंने PhD की अपनी, ये चीज़ जो है हमें उनसे सीखने के ऊपर मजबूर करती है। दूसरी खुसूसियत उनका अखलाक है, जिसमें वक्त की पाबंदी, बड़ों का आदर, छोटों से मोहब्बत, उनकी तरबियत वगैरह चीज़ें हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं। तीसरी चीज़ कुरान से शगफ़ है जो हमें उनसे सीखना चाहिए। और चौथी चीज़ वो जो मुज़ाहमत और मुदाहनत है उनकी ज़िंदगी का जब हम मुताला करें, और बहुत सारी किताबें इस सिलसिले में छप भी चुकी हैं, खुद उनकी ज़माने भी मौजूद है, तो जो अज़ीमत और कुर्बानी से उनकी ज़िंदगी इबारत रही है, जिसकी तफसील में जाने का मौका नहीं है, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा सबक रखती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ज़बान व अदब के इस रमशनास, तहज़ीब व रवायात के अमीन, मोहब्बत रसूल व सहाबा से सरशार डॉक्टर ताबिश मेहदी, जो कि एक अदीब भी हैं, शायर भी हैं, मुहक़्क़िक़ भी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं, उस्ताद व मुरब्बी हैं, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में आला दर्जात उनको नसीब फरमाए, उनके ख़िदमत और कुर्बानियों से हमें बेशक इस्तिफ़ादे की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। शुक्रिया यासिर भाई। हज़रात, आमतौर पे ये कहा जाता है कि बड़ों के पास वक्त ही होता है, उनको याद नहीं रहता है, बहुत सारे इवेंट, बहुत सारे प्रोग्राम में जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब के साथ जो अल्लाह ताला ने जो मेमोरी दी थी वंडरफुल, 30 साल पहले वो रांची गए, फलां सिख साहब से मिला, कैसी जगह थी, क्या बातें, सब मालूम है। मालेगांव में एक प्रोग्राम हुआ, उसकी तफसीलात बता रहे हैं 40 साल पहले। तो जैसा कि यासिर साहब ने बताया कि कमोबेश इसी तरह के एहसास मेरे भी हैं। तलबा को बहुत मोटिवेट भी करते थे और लगता था कि फ़ौरन इस वक्त उनको सर्जनिश करने की ज़रूरत है, तो शफ़क़त के साथ, मोहब्बत के साथ वो करते थे, यानी वो पूरी हुज्जत पूरी करते थे। ऐसा ना हो कि कोई वो बाकी रहे कि ये हमें बोलना था लेकिन हिकमतन हम उनको बोल रहे। बस सबसे बड़ी चीज़ उनके सामने होती थी वो तरबियत। तो एक बड़े मुरब्बी के हिस्से से हमारे दरमियान उनकी पहचान हुई। जैसे मैंने बताया कि मोटिवेट करते रहते थे वक्तन फ़ौक़न, जब भी मौका मिलता। मेरे सामने किसी तरह एक मोटिवेशनल शेर है, मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहूँगा कि तकोगे राह सहारों की तुम मियाँ कब तक। उनका अंदाज भी यही था बोलने के, मियाँ या अजीज़ी, तकोगे राह सहारों की तुम मियाँ कब तक, कदम उठाओ कि तकदीर इंतज़ार में है, कदम उठाओ कि तकदीर इंतज़ार में। अब मैं डॉक्टर साहब के आगे दूसरे शागिर्द प्रोफेसर डॉक्टर खालिद खान उमरी, शोबा इस्लाम स्टडीज़, जामिया मिल्लिया इस्लामिया को दावत दूँगा कि वो आए और इज़हार ख्याल। डॉक्टर खालिद खान उमरी। मोहतरम सदर मजलिस प्रोफेसर मोहम्मद इसहाक साहब, मेरे बुजुर्ग और सरपरस्त इंतज़ार नईम साहब, हसीब अनवर साहब, मेरे छोटे भाई अजीज़ अजमल फारूक साहब, इस वक्त जिस कैफियत से मैं दो चार हूँ और पिछले बहुत दिनों से ये कैफियत जारी है, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि अपनी गुफ्तगू जो है ज़बानी तौर पर कुछ आपके सामने पेश कर सकूँ। और फिर जिस जगह पे भी मैं खड़ा हूँ, दिल्ली की ज़िंदगी का सफ़र शायद मेरा इसी कैंपस से शुरू हुआ था। और यहाँ तक पहुँचाने का ज़रिया भी जो है वो ज़ात बनी थी, जिसके बारे में आज कई प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है, ताज़ियती नशिस्त के लिए मुनक़िद की गई, यानी उस्ताद मोहतरम मरहूम डॉक्टर ताबिश मेहदी साहब। मैंने कल की एक ताज़ियती नशिस्त के लिए कुछ कलिमात नोट किए थे, मैं चाहता हूँ कि उन्हीं को फिर यहाँ पर भी दोबारा दोहराऊँ, क्योंकि आज दिन भर में कुछ मसरूफ़ भी रहा, कुछ बातें नई उसमें इजाफा नहीं कर सका। उम्मीद है कि वो बातें काफ़ी होंगी। उस फूल के बगैर बहुत जी उदास है, जो दुनिया में आया है उसे जाना है, मौत एक बदीही हकीकत है। जब क़ज़ाए इलाही आ जाए तो इंसान के जिंदा रहने की सारी तदबीरें बेसूद साबित होती हैं।
عرصے سے چل رہی علالت کے بعد 22 जनवरी کو محترم و مکرم استاد مشفق و محسن مربی ڈاکٹر تابش مہدی صاحب کی رحلت ایک بڑے حادثے سے کم نہ تھی۔ ذاتی طور پر استاد محترم کی وفات میرے لیے ایک عظیم خسارہ ہے۔ یہ بات میں نے کل بھی کہی تھی اور پھر میں اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ مجھے جب ان کے انتقال کی خبر ملی، حالانکہ میں مستقل ان کے اس وقت ٹچ میں تھا، روزانہ میرا آنا ہوتا تھا، پچھلے 2-3 دن سے میں نہیں آ سکا تھا کیونکہ میرے گھر میں خود ایک وفات ہو گئی تھی اور مجھے بدایوں جانا پڑا۔ جب میں واپس آیا تو دوسرے دن خبر مجھے ملی، تیسرے دن کہ انتقال ہو گیا، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ایک بار میں سن 2000 میں اپنے والد محترم کی وفات کے بعد یتیم ہوا تھا اور آج میں دوبارہ یتیم ہو گیا۔ ڈاکٹر تابش مہدی صاحب سے میرا تعلق بہت دیرینہ تھا۔ 1986 میں جب وہ جامعۃ الفلاح بلریا گنج میں بحیثیت استاد تجوید القرآن تشریف لائے تو مجھے باضابطہ ان سے ملاقات کا پہلی بار موقع ملا اور شاگرد ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تعلق مضبوط سے مضبوط کر ہوتا گیا، یہاں تک کہ جب میں 1995 میں دہلی آیا تب بھی یہ تعلق اور زیادہ مضبوط ہوتا گیا، یہاں تک کہ ہمارا تعلق کچھ اس قسم کا ہو گیا کہ روزانہ ہماری ملاقات تقریباً ضروری تھی۔ اگر میں 2 دن 1 دن 3 دن نہیں پہنچ پاتا تو فوراً ہی اگلے دن جو ہے وہ خبر کرواتے۔ ایک ہمارے دوست ساتھ میں ہوا کرتے تو میں منظر، وہ بھی ان کے ساتھ بھی یہی رویہ تھا ان کا کہ اگر ہم دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہ پہنچ پاتا تو فوراً جو ہے خبر بھیجتے کہ بیٹے کیا ہو گیا، آپ لوگ کیوں نہیں آئے۔ اکثر میں عرض کرتا کہ مولانا دیر زیادہ ہو گئی تھی، وقت تقریباً 11 بج چکے تھے، پھر مناسب نہیں سمجھا تو کہتے میرے گھر کا دروازہ 12 بجے تک کھلا ہے، جب چاہو تب آ سکتے ہو۔ بغیر ملاقات کے، بغیر ایک دوسرے کی خبر گیری کے ہمارا وقت کبھی نہیں گزرا۔ مجھے یاد ہے شاید ہی اتنے لمبا عرصہ، تقریباً یہ 40 سال کا عرصہ ہے، اس میں بہت کم وقت ایسا گزرا ہوگا جب ہماری ایک دوسرے سے ملاقات نہ ہوتی رہی ہو یا ایک دوسرے کی خبر گیری نہ کرتے رہے۔ بہرحال یہاں تک کہ یہ جو ابھی مرض الموت کا جو ایام تھے ان کے، اس میں بھی مجھے روزانہ وہ بلاتے تھے اور ان کے بعض علمی کام تھے جو ادھورے رہ گئے تھے، ان میں ان کو مدد کی ضرورت تھی۔ انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ تم میرے مزاج کو سمجھتے ہو، شاید تم میری کچھ مدد کر سکو۔ تو اجمل تو کر ہی رہے تھے بہت سارے کام ان کے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ وقت کے لیے مجھے بھی روزانہ وہ بلاتے تھے اور میں مغرب بعد روزانہ ان کے یہاں حاضر ہوتا تھا۔ ان کا یہ انداز، اس طریقے سے بلانا، یاد رکھنا، ان کا فکر مند ہونا، یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ان کی طرف ہر شخص کو اٹریکٹ کرتی تھی۔ وہ مجھے ایک فیملی ممبر کی طرح سے رکھتے تھے اور شاید انہیں وجہوں سے میں بھی جو ہے ان کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ وہ مجھے اپنے بچوں کی طرح سے بالکل سمجھتے تھے، کبھی انہوں نے اپنے بچوں میں اور میرے درمیان کوئی فرق نہیں کیا۔ ابھی جس دن ان کا انتقال ہوا اس سے 1 ہفتہ پہلے میں اپنی فیملی کے ساتھ حاضر ہوا۔ میری بیٹی کبھی ان کے سامنے نہیں آئی تھی، چھوٹی سی ہے حالانکہ، لیکن کبھی ان کے سامنے نہیں کی تھی۔ جب اس کو دیکھا انہوں نے تو پہلے دعائیں دیں اور اس سے درخواست کی بیٹا تم میرے لیے دعا کرنا، شاید بچوں کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد مجھ سے کہا کہ میں نے اس بچی کو کبھی کوئی تحفہ نہیں دیا ہے، میرے پرس اٹھاؤ اور دیکھو اس میں اگر جو کچھ بھی ہو وہ سب اس بیٹی کا ہے۔ شاید وہ ان کی زندگی کا آخری تحفہ تھا جو انہوں نے میری بچی کو دیا۔ میری زندگی کی تعمیر و ترقی میں جن شخصیات اور اساتذہ کرام کی دعاؤں اور کوششوں اور فکر مندیوں کا دخل ہے، میں سمجھتا ہوں ان میں سب سے چند نمایاں ناموں میں سے ایک اہم نام استاد محترم ڈاکٹر تابش مہدی کا ہے۔ جامعۃ الفلاح کے بعد عمر آباد میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا۔ عمر آباد کی طرف نشاندہی کرنا اور مشورہ دینا یہ بھی ڈاکٹر تابش مہدی کا ہی، اس کا کریڈٹ تابش مہدی صاحب کو جاتا ہے۔ دہلی قیام کے دوران بھی جامعہ ملیہ اسلامیہ سے میری طالب علمانہ جو وابستگی ہو سکی، اس میں بھی ان کا اہم کردار رہا۔ اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ دراصل میں عمر آباد سے جب فارغ ہوا تو میں امیدوار تھا مدینہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کا اور مضبوط امیدواروں میں سے تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا۔ تو میرے اندر ایک چڑ سی پیدا ہو گئی تھی کہ مجھے اب تعلیمی سلسلے کو باقی نہیں رکھنا ہے۔ میں جب دلی آیا تو میں ملازمت کی غرض سے آیا تھا۔ مولانا نے مجھے بہت سمجھایا،
मेरे रिएक्शन को भी समझा और उसके बाद खामोश रहे। फिर धीरे धीरे मुझे कन्विंस करना शुरू किया, यहाँ तक कि मुझे इस हद तक सोचने में मजबूर कर दिया कि मैं अपने तालीमी सिलसिले को जारी करूँ। तो इसी की तरफ मैंने इशारा किया है कि मेरी तालिब इल्माना वाबस्तगी का जो जामिया मिलिया से मसला है उसमें भी उनका अहम किरदार रहा। फिर जामिया मिलिया इस्लामिया से मेरी जो तदरीसी वाबस्तगी हुई उसमें भी उनकी नए ख्वाहिशात और मसाइल का अच्छा खासा दखल रहा है। अगरचे मेरे दूसरे और करम फरमाओं का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है, लेकिन ताबिश मेहदी साहब का भी उसमें बहुत अहम किरदार रहा। डॉक्टर ताबिश मेहदी साहब बैनुल-अक़वामी सतह पर शेर व अदब, तख़लीक़ व तनक़ीद के लिए मकबूल व मारूफ थे। उनकी शेरी और नसरी तख़लीक़ात की तादाद 50 से ज़ायद है और बहुत कम ऐसी तख़लीक़ात उनकी होंगी या किताबें ऐसी होंगी जो उन्होंने मुझे कभी दी न दी हों, बल्कि हमेशा जब भी कोई चीज़ आती सामने फ़ौरन मुझे पढ़ने की ज़रूर दिया करते थे। ज़ाहिर है कि मौका उनकी इल्मी और फ़नी महारत पर गुफ्तगू का नहीं है, लेकिन उनकी तहरीरों से जो उनका किरदार नज़र आता है, जो समझ में आता है, उनकी शायरी से, उनकी तहरीरों से, उससे मालूम होता है कि वो रिवायत पसंद तबीयत के इंसान थे, बहुत ही सादगी पसंद इंसान थे, लेकिन ऐसी सादगी और रिवायत पसंदी के बावजूद नफ्शनास भी थे, ज़माने के नफ्शनास भी थे। शेर व अदब की फ़नी बारीकियों की वाक़फ़ियत के साथ साथ मुआशरे और समाज की सूरत हाल से भी काफ़ी गहरा शऊर और इदराक रखते थे। मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मुतासिर किया मौलाना की वो ये था, और जो बस उनमें आम तौर पर बहुत सारे जो उलमा हैं, फज़ला हैं, मुस्लिहीन हैं, मुरब्बीन हैं, उनके यहाँ बड़ा कम देखने को मिलता है, वो था उनका मखसूस इस्लाही और तरबियती अंदाज़, जिसकी तरफ बहुत सारे लोगों ने इससे पहले वाली नशिस्त में भी इशारा किया और अभी यासिर साहब भी इशारा कर रहे थे कि वो बच्चों को खुद से करीब करने में यकीन करते थे और कुछ इस अंदाज से तरबियत फरमाते थे कि कभी एहसास नहीं होने देते कोई हमें जो है समझा रहा है या बुझा रहा है या हम पे ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है, बल्कि बच्चा खुद ब खुद खिंचता हुआ चला जाता है। मुझे याद है एक मरतबा मौलाना जलालुद्दीन सरमूरी साहब, जो मुझे वो भी बहुत मानते थे, उन्होंने एक मरतबा मुझसे अर्ज़ किया, क्या बात है खालिद साहब, मैं तो उमरी हूँ, तुम मेरे ही इदारे के पढ़े हुए हो, तुम मेरे यहाँ कम आते हो, ताबिश मेहदी साहब को बड़ी अहमियत देते हो। मैंने कहा आप मसरूफ़ आदमी हैं, लेकिन ताबिश साहब जो है, इसलिए मैं आपके पास आने में मुझे थोड़ा सा इंतज़ार रहता है कि आपका वक्त कभी जो है ख़राब होगा, लेकिन ताबिश मेहदी साहब एक ऐसे इंसान है कि उनके पास वक्त उनका भी बहुत मसरूफ़ है, लेकिन अगर पहुंच जाओ तो कभी भी जो मायूस नहीं होने देते किसी को, कुछ ना कुछ वक्त आपको ज़रूर देंगे, आपके साथ बैठ के बात करेंगे, और जब उनको कोई ज़रूरत होगी तो साफ साफ कह भी देंगे, बेटा मेरा कहीं का प्रोग्राम है, आप जाइए। तो ये जो उनका अंदाज़ था, मैंने बहुत कम लोगों के यहाँ पाया। गलतियों पे टोकने का जो अंदाज़ था, वक्त की पाबंदी, अभी आई बात सामने के बहुत सारे वक्त की पाबंदी के सिलसिले में अक्सर कहा करते थे कि कहीं भी जाना होता, सफ़र पे जा रहे होते, हज़र में जा रहे होते, मुझे अक्सर जगहों पे जाने का साथ जाने का मौका मिला, मुझसे कहते कि अगर 10-15 पे पहुँचना बेटे आपको 10-10 पे आ जाना है, और मैं भी कोशिश करता उनके म्यार पे पूरा उतरने की। इस किस्म की उनकी अहमियत थी। कहीं अभी हाल फिलहाल में जो 1 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की, उनकी बेटी की शादी थी, मेरे पास फ़ोन आया कि बेटे आपको मेरे साथ रहना है और शादी में फ़लाँ वक्त दिया गया है, फ़लाँ टाइम पे, तो हमको 5 मिनट पहले पहुँचना है वहाँ पर। मैंने कहा अभी मौलाना कोई नहीं आया होगा, अभी बारात आने वाली आई होगी, अपना कोई और पहुँचा होगा, लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ मौजूद थे। हालांकि कोई नहीं था वहाँ, न मुंतज़मीन थे न कोई था, जो जिम्मेदारान थे उनके बेटे वगैरह वो भी सब बाद में आए, खुदा से अजमल साहब भी मौजूद हैं यहाँ पर, ये भी बाद में पहुँचे, लेकिन मौलाना मुझे लेकर के वहाँ वक्त से पहले वहाँ पर हाजिर थे। तो वक्त की पाबंदी, चाहे प्रोग्राम हो, चाहे कोई और चीज़ हो, जैसे मकाले की तैयारी वगैरह के सिलसिले में उनसे अगर कोई दरख्वास्त करता तो उस पर भी जो है वक्त के अंदर हर चीज़ को तैयार करके देते ना, ये उनका खासा था। मौलाना राबे साहब पे उन्होंने पिछले साल जब उनका इंतकाल हुआ तो उस वक्त जब उनसे मुतालबा किया गया कि उनको कुछ तहरीर फरमाए, तो वक्त बहुत कम था और उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा नहीं चल रही थी। मुझसे उन्होंने कहा कि तुम आ जाओ, तो थोड़ा सा उनको शिमला करा दो। मैं इत्तेफाक से उस दिन जा नहीं सका, मेरी खुद तबीयत ख़राब हो गई, तो मैंने मौलाना को फ़ोन किया, मैं नहीं आ सकता, तो पता ये चला कि उन्होंने खुद शुरू कर दिया करके और मुकम्मल करके भेज भी दिया। जब मैं मेरी तबीयत सही और मैंने पूछा कि मौलाना आ रहे हैं, बोले बेटे वो तो काम हो गया, मैंने भेज दिया। तो वक्त के इस कदर वो पाबंद इंसान थे। इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं जो ताबिश मेहदी साहब की ज़िंदगी में वक्त की पाबंदी, गुस्सा ना आना,
کوئی کتنا بھی غلط بات کہہ دے، سخت بات کہہ دے، مشکل بات کہہ دے ان کے لیے، طبیعت پہ گرانبار ہو ان کے، لیکن وہ اس بات کو برداشت کرتے، تحمل سے کام لیتے اور ہمیشہ اس کی تنقید بھی کیا کرتے تھے۔ اس طریقے کے بے شمار پہلو ہیں۔ قرآن سے ان کا جو لگاؤ تھا اس کے سلسلے میں بھی بہت باتیں آئیں، لیکن مجھے یاد ہے کہ جامع الفلاح میں جب وہ تشریف لے گئے استاد قرآن کی حیثیت سے، تو جامع الفلاح میں اس سے پہلے تک کا ماحول جو ہے قرآن کے سلسلے میں بڑا عجیب و غریب سا تھا۔ بہت کم لوگ جو ہے تجوید سے قرآن پڑھنا جانتے تھے اور ماحول تو بالکل بھی نہیں تھا۔ مولانا ابوالعز صاحب سابق امیر جماعت مرحوم کے کہنے پر جو ہے وہ وہاں تشریف لے گئے تھے۔ ظاہر ہے انہوں نے جو کلاسز دی گئی ان کے علاوہ قرآن سے جو ان کی محبت اور شغف تھا اس کی یہ مثال کے طور پہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے جو اس کے علاوہ ایکسٹرا ٹائم لوگوں کو دیا، فجر بعد، مغرب بعد، عصر بعد مختلف بیچز بنائے، ان کلاسوں کے درمیان جو بچے ان کو اچھے نظر آئے، جن کے اندر ٹیلنٹ نظر آیا کہ وہ سیکھ سکتے ہیں، ان کو جو ہے انہوں نے جو ہے بلایا اور سب کو وقت دیا۔ مجھے بھی انہوں نے کہا کہ تم عصر کے بعد آیا کرو۔ اب ظاہر ہے میں اس وقت بچہ تھا، 12-13 سال کا، مجھے کوئی زیادہ دلچسپی اس میں پیدا نہیں ہو رہی تھی، مجھے کھیل کی پڑی رہتی تھی کہ میں اپنا کھیل کھیلوں جا کر کے۔ تو میں جب 2-3 دن نہیں پہنچا تو مجھ سے وجہ پوچھی کہ تم کیوں نہیں آئے، تم سے میں نے کہا تھا آنے کے لیے۔ میں نے عرض کیا کہ میں شاید اس وجہ سے نہیں آتا ہوں، اس وقت میرے کھیلنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو کہا فجر بعد آ سکتے ہو؟ میں نے کہا فجر بعد آ جانا۔ مستقل فجر بعد وہ مطلب ہم لوگوں کا بیچ انہوں نے الگ سے تیار کیا اور باقاعدہ لوگ پوری ٹیم تیار کی اور اس طریقے کا ماحول بنایا کہ اس ٹیم کے ذریعے جو 10 لوگوں کا 20 لوگوں کا بیچ ہوتا تھا اس کے ذریعے سے دوسرے 20 لوگ تیار کیے جائیں۔ پر ایک سال کے اندر پورے جامع الفلاح کے اندر اکثریت طلباء کی ایسی تھی جو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھ سکتی تھی، اچھے انداز میں پڑھ سکتی تھی، صحیح طریقے سے پڑھ سکتی تھی۔ فجر بعد کا یہ جو بیچ تھا بڑے طلباء کے لیے تھا، میں بہت چھوٹا تھا، اگر یہاں موجود ہوں ڈاکٹر حکیم اکرم صاحب مجھ سے کافی سینئر تھے، لیکن جو ہے ان کے ساتھ مجھے پڑھنے کا موقع ملا، اسی وجہ سے کبھی کبھی مذاق میں ان کو چھیڑتا بھی ہوں کہ آپ تو میرے ہمدرد ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ جو ہے بچوں کو پکڑتے تھے، ٹیلنٹ کو پکڑتے تھے، اس کی تربیت کرتے تھے۔ تو جو ہے مطلب کہا جائے ایک طریقے سے چیزوں ایک جوہری کا کام کرتے تھے، وہ ایک ٹیلنٹ کو پکڑنا اور اس کو تراشنا اور اس طریقے سے اس کو تیار کرنا۔ یہ ساری خوبیاں تھیں تابش مہدی صاحب کے اندر، اور بہت ساری ایسی بے شمار باتیں ہیں، بے شمار واقعات ہیں۔ میں دلی کے اندر ان کے ساتھ 30 سال تقریباً رہا ہوں اور ہر دن ہی میں ان کے ساتھ عرض کیا، ان سے میری ملاقات ہوتی تھی یا کم سے کم فون پہ بات ہوتی تھی۔ میں نے کم لوگوں کو اس طریقے کا مربی پایا جیسا میں نے تابش مہدی صاحب کو پایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے جنات درجات بلند فرمائے، ان کے تمام اعزاء و اقارب کو، ان کے اہل خانہ کو، ان کے بچوں کو، سب کو جو ہے صبر کی توفیق دے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اب میں محترم جناب انتظار نعیم صاحب، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ آپ سے دیرینہ رفاقت رہی ہے، خاص طور پر ادارہ اسلام ہند کے حوالے سے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے احساسات کا اظہار کریں۔ جناب انتظار نعیم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صدر مجلس صاحب، رفقائے محترم، عزیزان گرامی، میرا محترم ڈاکٹر تابش مہدی صاحب سے خالصہ کا تعلق 1972 سے رہا ہے۔ ہم تحریک کے ساتھی تھے، جماعت اسلامی ہند کے ارکان میں ہم دونوں رہے اور ہیں الحمدللہ۔ ادارہ ادب اسلامی ہند سے ہم دونوں کا تعلق بہت قدیم، مختلف حیثیتوں سے ڈاکٹر تابش مہدی صاحب سے قربت رہی، اور جیسا کہ دوستوں نے بھی فرمایا ان کے بارے میں، کثیر الجہاد شخصیت تھی ان کی۔ وہ صرف انہی کے استاد تھے، صرف انہی کے ادیب تھے، صرف انہی کے ناطق تھے، صرف انہی کے شاعر تھے،
महज ये नहीं कि वो नात निगार थे, नात गो थे, कुरान के शगफ था, गैर मामूली शगफ था, तजवीद के माहिर उस्ताद थे, मुख्तलिफ हैसियतें अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रहीं। और बड़ी बात यह है कि इन तमाम हैसियतों को उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाया। अयमन अपने दोस्त इंजीनियर अब्दुल साहब ने कहा अगर ताबिश साहब हयात होते और ये बोर्ड देखते फौरन उसकी तस्दीक करते कि इसमें क्या चीज़ रहने की और क्या चीज़ नहीं रहने की है। ये उनका मिजाज था, उनकी मोहब्बत, उनकी अपनाइयत, उनका उन्स तमाम रुफ़ा के साथ, दोस्तों के साथ, तहरीक के अफराद के साथ, अपने अजीज शागिर्दों के साथ गैर मामूली। इदारे अदब इस्लामी के नायब सदर रहे हो, हम दोनों एक साथ ही नायब सदर रहे। उनकी खूबसूरतियत ये थी कि वो जमात इस्लामी हिंद से अपनी वाबस्तगी या इदारे अदब इस्लामी हिंद से अपनी वाबस्तगी को ज़बान से कम प्रोपेगेट करते थे, अपने अमल से इसका इजहार करते थे। मालूम होता था कि एक शख्स जमात इस्लामी से वाबस्ता है, मालूम होता था कि इनका कलाम ऐसा है जिससे इदारे अदब इस्लामी हिंद, तहरीक अदब इस्लामी हिंद से वाबस्तगी कर सकती है। दोस्त ने उनके नाम के अशार पेश किए, नातिनी उनकी गज़ल के अशार भी, गज़ल की शायरी भी उनकी इसी तरह की होती थी जिससे उनके खैरात की बुलंदी का एहसास होता था और तामीरी फिक्र का इज़हार होता था। महसूस होता है कि कभी वो अपनी मस्जिद में जा रहा है, अभी महसूस होता है कभी मरकज़ से निकल रहे हैं, कभी मरकज़ी मकतबा इस्लामी से निकल रहे हैं। ये गुर्बत का ताल्लुक़ अल्हम्दुलिल्लाह उनसे हमेशा रहा। मैं अक्सर मैसेज करके उनकी खैरियत मालूम किया करता था। उनकी हालत की वजह से मैंने कोशिश की कि उनको ज़हमत न दूँ, लेकिन उनकी खैरियत मालूम किया करता था अक्सर। यहाँ तक कि जो देवबंद रहे पिछले कुछ दिनों पहले, जब भी उनसे फ़ोन पर मोबाइल पर गुफ्तगू हुआ करती थी, लगता था कि अपना कोई बोल रहा है। उनका अंदाज एक पाकिस्तानी शायर की तरह से, दिल में सीधे आन दबोचें, मीठी बातें सुंदर बोल, मीर नज़ीर कबीर और इंशा सबका एक घराना हो। मीठी बातें सुंदर बोल ताबिश साहब का खासा था, चाहे अपने से बड़ों में हो और चाहे अपने से छोटों में हो। इसी खुसूसियत ने उनको महबूब आलम बना दिया था और उनसे दिल्ली नहीं, हिंदुस्तान नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर के लोग भी गैर मामूली मोहब्बत करते थे, जिसका इजहार मुख्तलिफ हैसियतों से हुआ करता था। एक ख़ास बात जिसका मुझे ख़ास तौर पर अंदाज़ा है और उनका गवाह हूँ कि वो इबादत गुजारी में अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत आगे बढ़े हुए थे। मुशारों के सफ़र में ऐसा शायद कभी हुआ हो कि उन्होंने नमाज जमा की हो सफ़र के दौरान भी, और जब वक्त होता उसी वक्त नमाज पढ़ने की कोशिश करते, दूसरे लोग जमा भी कर लेते, ताबिश साहब खामोशी से बैठ जाते और जब वक्त होता तो फिर वो वक्त पर नमाज अदा करते। नमाज के अलावा, नमाज के आगे जो नवाफिल का एहतमाम उनके यहाँ होता था, उसका इज़हार भी सफ़र में भी होता था। एक पहलू जिसका शायद कहीं जिक्र हुआ हो
जमात इस्लामी से वाबस्तगी और गहरी वाबस्तगी के साथ ही तसव्वुफ में भी उनका रुझान बहुत बड़ा हुआ था। उलमाए इकराम मशाइख से उनका ताल्लुक, उनकी मोहब्बत गैर मामूली हुआ करती थी। तसव्वुफ पर उन्होंने गुफ्तगूएं भी की, उसका इज़हार भी किया और करते रहते थे। ऐसी जिंदगी, ऐसी हयात बहुत ही काबिल सताइश है। कल मैंने एक महफिल में जिक्र किया कि ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे। कहने को तो लोग कहते हैं सेल्फ मेड है, ये सेल्फ मेड है, लेकिन ताबिश ताब जैसा सेल्फ मेड शायद हजारों नहीं लाखों में कोई मिले। ऐसा शख्स जिसने आंखें खोली और 10-11 साल के हुए तो तमाम अपनों का साया सर से उठ चुका था। वहाँ से तालीमी मैदान में उनकी जद्दोजहद काबिल तफरील है हमारे तलबा के लिए ख़ास तौर पर, कि उन्होंने बेशुमार डिग्री हासिल की और यहाँ तक कि भी उसके 3 बच्चे ने जामिया मिलिया से PhD की सनद भी हासिल की। ये कोई मामूली बात नहीं है। आमतौर पर लोग रोजी रोटी माश की जद्दोजहद में सब भूल जाते हैं या उन्हें मौका नहीं मिलता। ताकि आपकी ज़िंदगी को आप एनालाइज करें आप तो हैरत होती है कि एक शख्स ने इतना काम कर लिया, कैसे किया होगा। थोड़ा सा इशारा मिला कि अपने औकात को किस तरह से ऑर्गेनाइज करते थे वो, और जो काम जब करने का है वो उसी वक्त करते थे। इससे उनके औकात में शायद बहुत बरकत हुआ करती थी और इतना काम वो कर सके कि तमाम तर दौरों और सफ़र और मुशायरे और दीगर मसरूफियात तदरीसी खिदमात के साथ उन्होंने 50 किताबें तस्नीफ कर दी थी। ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं चाहूँगा कि ये चीज़ मोटिवेशनल होनी चाहिए कि वो भी सोचें, हर शख्स यहाँ तय करे कि हमें भी अपने ज़ौक़ के मज़मून में बहुत आगे बढ़ना है और दीन की, अदब की, तहरीक की खिदमत हम उसी तरह से कर सकें जिस तरह से ताबिश साहब ने की। वो अपने दोस्तों से, तहरीक के लोगों से बेपनाह मोहब्बत करते थे। इसी वजह से मैंने अर्ज़ किया कि लोग भी उन पर जान छेड़ते थे और मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि वो किसी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं या उनसे कोई बहुत नाराज़ है। ऐसी मुतवाज़िन ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रही। हम लोगों को शायद कैंपस के लोगों को ज़्यादा अंदाज़ा न हो, वो बहुत बड़े शायर थे। महफिलों पर छा जाना, चाहे नातिया महफिल हो, नातिया मुशारा हो, गज़लिया मुशारा हो, अल्लाह ताला ने उनको खूबसूरत दी थी। बारह ऐसा हुआ, हम साथ रहे, ने देखा कि अपने गज़लों के ज़रिए और गज़लों के साथ साथ उसकी पेशकश का अंदाज होता था, उनका जो तरन्नुम होता था दिलों को छूता था और हिंदुस्तान भर के लोग उनसे इस चीज़ से शायर की हिफाजत की गैर मामूली मोहब्बत करते थे। शायद भी कोई ऐसा शहर हो हिंदुस्तान में जिससे ताबिश मेहंदी साहब पूरी तरह वाकिफ न हो। आप कहें आप जौनपुर में एक शायर हुए थे, तो जहाँ आपने जौनपुर का जिक्र छेड़ा या किसी और शहर का जिक्र छेड़ा तो वहाँ के मौजूदा शोरा, अदीब, फनकार और फिर उनके सिलसिले के दूसरे लोग 2-3 पुश्तों के, और वो फलां उनसे ये ताल्लुक़ और फलां उनका उनसे ये ताल्लुक़, हैरतअंगेज़ याददाश्त थी उनकी और हैरतअंगेज़ मालूमात थी उनकी जिसे वो संजो के रखते थे और अपनी ज़रूरत उसे पेश भी करते थे। ये उनका जो खासा था, इसका असर ये होता था कि जो सुनने वाले के ताबिश साहब ने हमारा भी जिक्र किया था महफिल में, हमें भी याद किया। एक छोटी सी बात जो है उनको लोगों के दिलों में घर कर जाती थी। बहरहाल
साहब एक अजीम शख्सियत थे, बड़े इंसान थे, बड़े शायर थे, बड़े मुरब्बी थे, मुख्तलिफ सलाहियतों से अल्लाह ताला ने उन्हें नवाजा था। और ये बात लाइक शुक्र है, लाइक तहसीन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें जो सलाहियत दी थी उसका उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया। जितना कुछ मुमकिन था उसका उन्होंने इस्तेमाल किया। वो बहुत अच्छे नाकिब थे। उर्दू दुनिया में बहुत ज़्यादा नाकिब नहीं रहे हैं। ताबी साहब का नाम एक नुमाया नाम है। कल भी मैंने अर्ज़ किया था कि शायर तो बहुत से हैं, शायरों में नात निगार बहुत कम मिलेंगे आपको। कुछ लोग हैं बहुत कम मिलेंगे। ताबी साहब की खूबसूरत कि बड़े शायर, बड़े नात निगार, और जिस तरह से नातों को पेश करते थे लगता है कि हमातन आशिक़ रसूल। हमारे दोस्त ने यहाँ उनकी कितनी नातें हैं जिससे उनके इश्क़ सहाबा का इज़हार होता है कि अक्सर मिसरों में वो हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, एक ही मिसरे में अक्सर मिसरों में, अक्सर नातों में उनका जिक्र आप पाएंगे। इश्क़ सहाबा, इश्क़ रसूल तो दर्जा कम था, इश्क़ सहाबा में उनकी नातें डूबी रहती थी। बहरहाल बड़ी खूबियों के मालिक थे हमारे दोस्त। अल्लाह ताला उनकी तमाम खिदमात जो मुख्तलिफ जिहाद हैं, मुख्तलिफ मैदानों में हैं, वो कबूल फरमाए, उनके कब्र को नूर से भरे, उनके दर्जात बुलंद करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और उनके तमाम अइज़ा, अक़रबा और अफराद ख़ानदान को अल्लाह ताला सब जमीन अता फरमाए। वो आपकी दावना अल्हम्दुलिल्लाह के आदमी। हमारे बीच जैसे बताया अजमल भाई भी हैं और हमारे सदर साहब भी हैं। उससे पहले मैंने दारुल इस्लाम हिंद के एक और रफ़ीक जो डॉक्टर साहब के थे, हसनैन साइद साहब, जो अभी जनरल सेक्रेटरी हैं दारुल इस्लाम हिंद के, उनसे भी मैंने गुजारिश की है कि आप तशरीफ़ लाएँ और डॉक्टर साहब की तरफ से इस अपने एहसास के इज़हार करें। हसनैन साइद साहब। डॉक्टर ताबिश मेहदी साहब की ताज़ियती अदवाइया मजलिस में हम सब शरीक हैं। यकीनन ये सिर्फ उनके अहल खाना ही के लिए नहीं बल्कि उनके तमाम वाबस्तगान सबके लिए सारा है, बड़ा सारा है। बहरहाल तयशुदा है, अल्लाह ताला की मशीयत, सब एक वक्त मुतय्यन है। लेकिन बाद शख्सियात ऐसी होती हैं कि बहुत देर तक याद रहती हैं। इस वक्त भी डॉक्टर साहब के हवाले से उनकी बड़ी खूबियों, सलाहियतों और साथ का तज़किरा हुआ है। ये वाक़या है कि अल्लाह ताला ने उनको बड़े औसाफ सलाहियतों से नवाजा था। वो ढेर सारी खूबियों के मजमूआ थे, और जैसा कि अभी मोहतरम इंतज़ाम साहब ने कहा कि उसको बहुत अच्छे और सलीके से बरता भी सारी ज़िंदगी। उनकी ज़िंदगी का सफ़र इल्मी और अदबी मैदान से शुरू हुआ और आखिर तक उससे वाबस्ता रहे। और सिर्फ वाबस्तगी ऐसी नहीं कि पूरी यकसुई और मुस्तैदी के साथ गुजरे रहे। और आप हज़रात वाकिफ़ हैं, ये बार में है, न जाने कितने ही लोगों को उन्होंने फैज़ पहुँचाया। एक बड़ी तादाद है उनके तलामज़ा की, उनसे इस्तिफ़ादा करने वालों की, तो बड़ी खूबियाँ थी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी कमज़ोरियों, उनके खामियों वगैरह जो भी इंसानी तकाज़ियत होती है उसे सरनज़र करे, उनके तमाम हसनात, उनके किए हुए तमाम कामों को कबूल फरमाए, जन्नत में आला मुकाम, फिरदौस वाला मुकाम अता करे, और उनके अहले खाना मुतज़्ज़बीन को सब्र ज़िंदगी की तौफ़ीक़ बख्शे। शुक्रिया साहब। मैं
अजमल भाई को समझ देना चाहूँगा कि वो मेरे ख्याल में अजमल भाई आप यहीं बैठ कर बात कर सकते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम। बहुत सारी बातें हमारे बुजुर्गों ने अर्ज कर दी हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ में इस वक्त हम लोग जमा हैं। आखिरी जो कुछ बरस गुजरे हैं बाबा के, उसमें ये इदारा उनकी ज़िंदगी की तरजीहात में शामिल था। कई मरतबा ऐसा हुआ कि डॉक्टरों के मशवरे से इस बात को हम लोगों ने मुझसे कहा, बिलिसरार कहा, बहुत ज़ोर देकर के आप देवबंद का क़याम मुस्तकिल इख्तियार करते हैं, देवबंद में ही रहें, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह घर कुशादा है, आप वहाँ साथ है। और उनका अपना पुरानी उनकी मजलिसें, उनके यार दोस्त भी, लेकिन वो सिर्फ इस इदारे में जो कुरान की खिदमत ध्यान दिया करते थे, उसकी वजह से वो बिलिसरार बहुत सख्ती के साथ मना कर देते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और वक्त की पाबंदी की बात सभी लोगों ने कही है। एकेडमी के मुतालिक बाबा का मामला यह था कि अगर कभी उनको शुगर अपनी टेस्ट करानी होती थी, अशिफा हॉस्पिटल आते थे और खाली पेट आकर वहाँ पर टेलीफोन देकर आते थे, फिर यहाँ पढ़ाते थे। अब जो नाश्ते के बाद का जो होता है शुगर जो टेस्ट कराना था उनको, उसके लिए वो इतना ख्याल करते थे कि अगर मैं यहाँ से घर जाऊँगा और फिर वापस आऊँगा तो हो सकता है कि अगले पीरियड में कुछ लेट हो जाए। तो वो इसका एहतमाम करते थे कि कोई उनके लिए नाश्ता लेकर आ जाए, और वो यहीं अशिफा के बागीचे में बैठकर, ग्राउंड में बैठकर नाश्ता किया करते थे। उसके बाद दोबारा फिर फ़ोन देकर फिर आकर यहाँ पर अपना वक्त दिया करते थे। एकेडमी के बच्चे यहाँ के, उनको मैंने खुद ब खुद गवाह हूँ इस बात का कि मतलब तबीयत उनकी बहुत ख़राब चल रही थी। ये अगस्त के बाद की बात है शायद, और जी अगस्त के बाद की बात है। और उस दिन एक साहब, बहुत अहम शख्सियत ने उनसे वक्त ले रखा था कि मिलने आने वाला हूँ, तो बाबा ने मुझसे मना करवाया कि उनसे कह दो कि तबीयत सही नहीं है, किसी और दिन मिल लेंगे। एकेडमी के 2-3 तलबा का फिर मैसेज आया है, कॉल आई कि हम आना चाह रहे हैं मिलने के लिए। बात हुई, कहा मना कर देते हैं, क्योंकि मैं देख चुका था, उससे पहले मना कर चुके थे। नहीं है भाई, तो बच्चे बेचारे बहुत दूर से आते हैं, उन्हें आने दो, थोड़ी देर बिठा के मैं रवाना कर दूँगा। लेकिन वो जब बिठा लेते थे ये तो बिल्कुल आखिर वक्त तक रहा। आखिर में भी जिन लोगों ने मुलाकातें की हैं 1-2 दिन पहले तक भी, वो भी इस गलतफहमी में रह गए तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं है और ठीक ठाक है। हो सकता है किसी को ये भी महसूस हुआ हो कि शायद हम लोग, घर के लोग, शायद कुछ मुबालगा से हमने कुछ काम लिया उनकी खराबी सेहत को वाज़ह करने में। लेकिन वो हर आदमी से मिलते ही इस तरह थे कि उसे लगता था कि तबीयत माशाअल्लाह बहुत अच्छी है, ठीक ठाक है। मेरे लिए और यहाँ मेरे जो दोस्त बैठे हुए हैं उनके लिए एक बहुत अहम चीज़ होगी शायद ये, और मिसाली चीज़ होगी, लायक इक़्तिदा है। बाबा तहज्जुद के बहुत पाबंद थे, इतनी पाबंदी कि वो गैर मुल्क के सफ़र से इंग्लैंड से वापस आए थे और रात में आके 1-2 घंटे आराम किया, और फिर उसके बाद जो अपना उनका वक्त था 3, साढ़े 3, 4 बजे का, उसमें वो उठकर अपना ज़िक्र अस्कार में, नमाज वगैरह में लग जाते थे। हम लोगों ने उनसे पूछा था कि ये मामूल कब से है, तो उन्होंने बहुत आखिर में हम लोगों को बताया, अक्सर डाल जाते थे कि ये जब मैं 19 साल का था उस वक्त से मेरा मामूल है, और उस वक्त से आखिर तक अल्लाह का फज़ल है। जो आखिरी रात उनकी गुजरी घर पर अस्पताल से पहले की, उसमें भी बाबा रात में सब लोग जाग ही रहे थे, कुरान वगैरह पढ़ रहे थे। 3:30-4 बजे का वक्त था रात में, फजर से पहले का। उस वक्त भी यानी उस 24 घंटे 30 घंटे का जो अरसा है उसमें उन्होंने
50 मरतबा उठ कर उन्हें एहसास होता था बुलूगी का आलम था। घड़ी की तरफ देखते थे, हम लोग उसे इशारा करते थे बिठाओ, हम लोग ज़बरदस्ती बिठाते थे उनको पकड़ कर, फिर पूरे तयम्मुम करते थे, कोई रवा रवी में नहीं, बाकायदा मुकम्मल तयम्मुम। उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ के फिर लेटते थे। और फिर तहज्जुद का वक्त जब आया उस वक्त भी यही मामूल हुआ उनका। तकरीबन 4 बजे करीब उन्होंने फिर घड़ी देखी, हमसे फिर कहा, हमने फिर उठा के बिठाया, उन्होंने नमाज अदा की और उसके बाद लेट गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम से ताल्लुक़ की बात बार बार आई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ का ही नतीजा था जो हम सब के लिए बहुत बाइज़ इत्मीनान भी है अल्हम्दुलिल्लाह, कि आखिरी जो 24 घंटे गुजरे उसमें वो जो कुछ बोल रहे थे वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इस बीच में वो बार बार दुरूद इब्राहिमी बिलजहर पढ़ रहे थे और बिला मुबालगा 100-200 मरतबा उन्होंने दुरूद इब्राहिमी पढ़ी होगी। और बाकी कोई बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन दुरूद इब्राहिमी जब वो पढ़ते थे तो बिल्कुल साफ सब लोग समझते थे। मैं और आप जिस तरह पढ़ते हैं उसी तरह से वज़ाहत के साथ पढ़ रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम के सिलसिले में हुजूर शायरी में बाबा ज़रूर मदह सहाबा का शेर खिलाते थे, ये कई शेर। तो जो आखिरी शेर उनकी ज़िंदगी का है, जो आखिरी पुरसुकून रात गुजरी उनकी ज़िंदगी में, उनकी से पहले यानी 2 रातों से पहले, आखिरी रात अस्पताल में गुजरी, उससे पहले वाली रात घर में, लेकिन वो पूरे उनकी के आलम में थी। उससे पहले वाली रात जो गुजरी उसमें भी मैं साथ ही में था बाबा के। तो बाबा ने मुझे बुलाया, शहर से पहुंचा, कहा कि लिख लो, और मुझे लगा कोई शेर बोल रहे हैं, शेर ही बोल रहे थे वो, लेकिन वो ज़ुबान लड़खड़ा रही थी बहुत ज़्यादा, उसको बोल नहीं सके। लेकिन वो जो मेरे पास लिखा हुआ है, जिस तरह उन्होंने बोला मैंने उसी तरह उसे लिख लिया, जो वज़न में नहीं है, बहर में नहीं है, लेकिन वो मदह सहाबा का शेर है, खुलफाए राशिदीन ही का उसमें तस्करा है। और इस बात का तस्करा है कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ये मकाम दिया है, जिस मकाम को उनको रखा है, तो उस मकाम से फिर नीचे गिराने वाले, ऊपर उठाने वाले हम लोग कौन होते हैं। यहाँ एकेडमी में बाबा कुरान पढ़ाते थे और कुरान से उनको बहुत ज़्यादा शौक़ था। ये जो जुमा, इससे पहले वाला जुमा जो था, यानी जो बाबा की ज़िंदगी का आखिरी जुमा था, उसमें मैं उनके पास, तबीयत बहुत नाजुक थी, ऑक्सीजन लगी हुई थी घर में, मैं उनके पास बैठकर सूरह कहफ पढ़ रहा था। और ये मैं अर्ज़ कर दूँ कि उनका जहन पटाने के लिए, जब सांस उनकी उखड़ रही होती थी कभी कभी किडनी की खराबी की वजह से, या और भी कोई उस तरह की बेचैनी होती थी, तो जहन पटाने के लिए हम लोग बिलुमूम कुरान करीम पढ़ा करते थे। जब कुरान करीम पढ़ते तो सारी तवज्जो उनकी उधर हो जाती थी कि पढ़ने वाला क्या पढ़ रहा है। उसमें भी उन्होंने एक लफ्ज़, बहुत मामूली सी, जो फन तजवीद के बहुत आला माहिरीन होते हैं उनके हिसाब से वो एक लफ्ज़ गलत, वो उसका लफ्ज़ का ज़ाहिर करना गलत था। लफ्ज़ दुनिया सूरह कहफ में आया है, तो मैंने उसको पढ़ रहा था तेज़ी के साथ, बहुत संभल में पढ़ते थे, मैं तेज़ पढ़ता हूँ, तो दुनिया जो है उसका अलिफ पूरी तरह से वाज़ेह नहीं हुआ, लेकिन उस हाल में भी ऑक्सीजन लगे हुए भी पूरी शदीद तकलीफ के आलम में भी वहीं से मुझे टोका कि नहीं, दुनिया बहुत साफ क्लियर करके अलिफ का बहुत वजाहत के साथ पढ़ो। तो ये कुरान करीम से, कुरान करीम की क़िराअत, तजवीद, उससे उनकी वाबस्तगी का मामला था। और वक्त की पाबंदी के सिलसिले में हम सब लोग जानते हैं, जावेद इकबाल साहब ने मुझे बताया, बिल्कुल नई बात थी मेरे लिए, बल्कि कल यहाँ जमात की ताज़ती इज्तिमा में उन्होंने हल्फिया ये बात कही, कहने लगे कि मेरे सामने कुरान रखा हुआ है, और दाविश मनी साहब चित्ती कब्र में जब मरकज़ी मकतबा था, तकरीबन 2 या 3 साल उन्होंने बताया, उस इतनी मुद्दत वो वहाँ पर आए, और इस मुद्दत में वो यहाँ से जाया करते थे बस में, लेकिन इस मुद्दत में वो एक दिन भी कभी लेट नहीं हुए, 1 मिनट भी लेट नहीं हुए। और उन्होंने ही बताया कि जो मरकज़ी मकतबा की इमारत है, जब पहले यहाँ मरकज़ था, उस वक्त के मेरे जमात जनाब सिराज हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह वो छत पर टहला करते थे, तो उन्होंने जावेद इकबाल साहब से कहा था कि भाई यहाँ से ताबिश साहब का मामला बड़ा अजीब है, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी वक्त पर रोज़ाना मैं उनको देखता हूँ तो यहाँ से गुजरते हैं, और ये तवील मुद्दत तक ये सिलसिला जारी रहा। बहरहाल आप हज़रात से गुजारिश है कि आप हज़रात अपने अपने तौर पर दुआ का एहतमाम करते रहें, और हम सब भी इस बात की कोशिश करें कि जो चीज़ें उनकी इख्तियार करने की थी उनको इख्तियार करें।
जो अदा करने की चीज़ें हैं उनकी अदा की जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इस प्रोग्राम को आगे ले जाते हुए प्रोफेसर मोहम्मद इसाक साहब अपनी बात रखेंगे और इन्हीं की दुआ के साथ इस प्रोग्राम का एहतमाम करना होगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। 22 जनवरी 2025 की सुबह डॉक्टर ताबिश मेहदी साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्नल ऐन तदमअ वल क़ल्बु यहज़न वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना। आँख नमनाक होती है और दिल गमगीन होता है, मगर हम वही कहेंगे जो हमारे रब को राज़ी करे। बेशक हर शख्स की मंजिल वही है, मौत बरहक़ है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अहले ख़ानदान और तमाम मुताल्लिक़ीन को सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। इस मौके पर हज़रत इमाम शाफ़ी का वो शेर याद आ रहा है जो उन्होंने हज़रत इमाम अब्दुर्रहमान बिन महदी को उनके साहिबजादे की ताज़ियत में लिखा था। उसका तर्जुमा है, मैं तुमसे ताज़ियत दीन की पैरवी में कर रहा हूँ, न कि इस यकीन पर कि मुझे ज़िंदगी का भरोसा है, क्योंकि ये हकीकत है कि वफ़ात पा जाने वाले के जिनसे उसकी ताज़ियत की जा रही है न वो बाकी रहने वाले हैं और न ताज़ियत करने वाले ही को बका है, अगरचे एक मुद्दत तक जिंदा है। मरहूम डॉक्टर साहब हमारे इस इदारे के पुराने और हरदिल अजीज़ उस्ताद थे। यहाँ के तलबा में कुरान मजीद की तिलावत का शगफ और दिलचस्पी पैदा करने में अहम हिस्सा रहा है। इदारा उनकी वफ़ात के गम में उनके अहले खाना के साथ बराबर का शरीक है। गुलिस्तान इल्म व फ़िक्र में उनका एक किरदार था। नहीं कहा जा सकता कि ये और इन जैसे हजरात के रुखसत होने से मुस्लिम समाज ने क्या कुछ खोया। खुदा के मुकर्रर करदा कानून अजल के तहत लोग इसी तरह दुनिया छोड़ते रहेंगे। अगर हमने गुलिस्तान इल्म में नए पौधे और गुल बूटे न लगाए तो इल्म दानिश की खुशबू बाकी न रहेगी। सूरह मोमिनून की जो इब्तिदाई आयात है वो उसमें वैसे तो पूरी आयत जिसमें क़द अफ़लहल मोमिनून से आयत शुरू होती है, यानी ये मौका ऐसा होता है कि इस मौके पर हम कुरान मजीद से तसल्ली और सुकून और इत्मीनान हासिल करें। इस हवाले से मैं वो बातें जिक्र कर रहा हूँ कि क़द अफ़लहल मोमिनून से ये इसका आगाज़ होता है और आखिर में है कि यही लोग उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। इसमें जो भी बातें बयान की गई हैं इसका हर वस्फ़ बड़ी अहमियत का हामिल है। इसमें एक आयत है वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। ये अमानात और अहद का लफ्ज़ बहुत ही अहम है। इसमें इंसान को अल्लाह ताला ने जो क़ुव्वतें, जो सलाहियतें और फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों की शक्ल में जो इनामात और अफ़ज़ाल और अमवाल और औलाद की सूरत में जो कुछ भी हमारे हवाले अल्लाह ने की हैं वो सब के सब अमानत है अल्लाह। और इसी तरीके से जो हमने अपने रब से अहद व मीसाक किया है, अहद का भी जिक्र है।
یہ سب کی سب یہ چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں، یہ اور بنیادی چیزیں، اور ہم سب کے لیے اس میں بہت روشنی ہے۔ اور تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر تابش مہدی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی تھیں، جو قوتیں ادا کی تھیں، شریعت کی پابندی کا جو عہد و میثاق انہوں نے اپنے رب سے کیا تھا، اس کا پاس و لحاظ رکھنے والے تھے، اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ہمارے رب کا وعدہ ہے کہ وہ فائز المرام ہیں۔ ابھی آپ سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر تابش مہدی کا بچپن اور پھر جوانی اور پھر ایک عمر کے اس منزل پر پہنچنا جس منزل میں پختگی آ جاتی ہے، یہ پورا لائف کا جو اسپین ہے وہ بہت ہی ایک اللہ تعالیٰ انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا صلاحیتیں دی تھی۔ تو بچپن سے اللہ تعالیٰ کی حکمت کو کوئی نہیں جانتا، بلکہ ہم کو مثبت طریقے سے سوچنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ جو آزمائشیں آتی ہیں بچپن میں، ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، ان کے نانا کا بھی انتقال بچپن میں ہو گیا، ان کی نانی کا بھی انتقال ہو گیا، اور گھر کے دوسرے اور سرپرست والدین بھی چل بسے، اور 11 برس کی عمر میں انہوں نے سفر شروع کیا۔ گویا وہ زندگی کا جو سفر شروع کیا وہ پوری زندگی جاری رہا۔ وقت کی رفتار بہت تیز ہے، اور زندگی ایک سفر ہے، اور اس سفر کا آغاز پیدائش سے شروع ہو جاتا ہے، اور کسی بھی مرحلے یہ سفر رکتا نہیں ہے، کہیں بھی اس سفر میں بہت سی آزمائشیں آتی ہیں، اور قرآن نے بھی سورہ انشقاق میں اس کا ذکر کیا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ تو یہ ڈاکٹر تابش مہدی کا بھی یہ سفر رہا، اور یہ سفر اپنی منزل کو جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی اجل مقرر کر رکھی ہے، وہ سفر وہ وہاں تک پہنچا۔ یہ اس میں جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے، سعادت اس سفر کے دوران ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اس زندگی کو محض چند روزہ عیش دنیا کے لیے نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق، خدا کے احکام کے تحت اس کو گزار کر اپنے آپ کو ابدی بادشاہت کے لائق بنانا ہے۔ اس چیز کا انہیں بھرپور اندازہ تھا۔ تو مجھے اس موقع پر غالب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، کیونکہ یہاں وہ لوگ ہیں، یہ غم کی محفل ہے، حزن کا ماحول ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جو شکستہ دل سے انسان خدا کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، خدا سے مانگتا ہے، تو وہ ملائے اعلیٰ میں وہ آواز پہنچتی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کو ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرنی چاہیے، اور جو بھی دعا کی جائے گی اس موقع پر، یہ موقع، یہ شکستگی، دل کی شکستگی، اور امن یجیب المضطر اذا دعاہ، یہ جو کیفیت ہے نا وہ ہر وقت نصیب نہیں ہوتی۔ یہ بعد میں اللہ تعالیٰ کی وہ بھی نعمت ہے، یہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ اس کیفیت کو، اس دورانیے کو ہمیں قیمتی سمجھنا چاہیے۔ یہ دورانیہ اس پہلو سے بہت اہم۔ ڈاکٹر صاحب کے سلسلے میں ابھی مختلف لوگوں نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے بہت اچھی سی باتیں بتائی ہیں، ہم سب کے لیے نہایت ہی مفید ہیں، ہمارے طالب علموں کے لیے بھی بہت مفید ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زینوا القرآن باصواتکم،
कुरान मजीद को अच्छी आवाज़ से पढ़ना चाहिए। और इस सिलसिले में हमारे अकादमीन और असलाफ ने इसकी मिसाल कायम की है और इसको बड़ी अहमियत दी। तो उनके अल्लाह ताला ने उन्हें अच्छी खुश इल्हानी भी अदा की थी और उस खुश इल्हानी से का इस्तेमाल उन्होंने कुरान मजीद की बेहतर तरीके से पढ़ा जाए, उस कुरान मजीद की तिलावत की तज़ीम में इस्तेमाल किया। उनका जमालियाती ज़ौक़ बहुत बुलंद था, ज़बान पर पूरी कुदरत थी, सुखनवर भी थे, सुखन शनास भी थे। और उनका वैसे तो पूरा कलाम, चाहे वो गज़ल का हो, मैं उस मैदान का तो हूँ नहीं, चाहे वो नात के नातिया अशार हो, उसमें जमालियाती ज़ौक़ हमें दिखाई देता है और भरपूर। जमालियाती हिस्स तो हर शख्स के अंदर है पैदाइशी तौर पर। जमालियाती हिस्स और जमालियाती ज़ौक़ में फ़र्क होता है। किसी का ज़ौक़ कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। तो जमालियाती ज़ौक़ का मज़हर हमें वहाँ मिलता है और उनका कलाम पढ़कर दिल को जो सुरूर, कैफ, फरहत, ताज़गी और लज्जत का एहसास होता है और उससे जो कलाम में तासीर आती है, वो उनकी कलाम की खुसूसियत है। और नातिया कलाम में कोई कलाम कहना आसान नहीं होता है। किसी ने कहा ना, अदब काहिश ज़ेरे आसमां अर्श नाजुक तर, नफ्स गुम करता मी आया जुनैदो बायज़ीद कीजा। इसका उन्होंने अपने कलाम में पूरा ख्याल रखा। उनके कलाम का ये नमूना मुलाहिज़ा हो, ज़िक्र नबी की बज़्म सजाना कितना अच्छा लगता है, नात की खुशबू घर में बसाना कितना अच्छा लगता है, खून के प्यासों पर भी जिसने दामन रहमत फैलाए, उस कामिल इंसान का ज़माना कितना अच्छा लगता है। था जो ज़बां पर तलवारों की बद्र उहद के मैदान में हर धुन में वो गीत सुनाना कितना अच्छा लगता है। उन्होंने बहुत से मशाइख का जिक्र किया है, असातिज़ा का जिक्र किया है और सूफिया का जिक्र किया है अपनी किताब में। उसी में सैयद अब्दुल्ला हसनी नदवी का जिक्र जहाँ किया है, उनके अपनी किताब महक छोड़ गए चंद अशार गज़ल के उन्होंने जो लिखे हैं वो मुलाहिज़ा हो। बला से मर्तबे ऊंचे न रखना, जिससे मैं जो ये इंतखाब किया है उससे उनकी शख्सियत का इजहार होता है। बला से मर्तबे ऊंचे न रखना, किसी दरबार से रिश्ते न रखना, पड़ोसी के मकाम में छत नहीं है, मकाम अपने बहुत ऊंचे न रखना। कभी तुम साइरों से तंग आकर घरों के बंद दरवाजे न रखना। नहीं है घर में मालो ज़र तो क्या गम, वरासत में मगर कर्जे न रखना। अगर फूलों की ख्वाहिश है तो सुन लो, किसी की राह में कांटे न रखना। बहुत बेरहम है ताबिश ये दुनिया, बहुत बेरहम है ताबिश ये दुनिया, ताल्लुक इससे तुम गहरे न रखना। तो ये उन्होंने जो ये किताब है महक छोड़ गए, इसमें मेरे दो असातिज़ा का भी जिक्र है, मौलाना जलील हसन नदवी का जिक्र है, मौलाना सगीर हसन इस्लाही का जिक्र है और शाह वसीउल्लाह साहब का जिक्र है, जिनसे हमारे ख़ानदानी मेरे ख़ानदान की भी निस्बत, बचपन में उनसे उनकी मजलिसों में शरीक होते थे। तो अभी जिक्र आया कि सूफिया का उससे भी उनका सूफिया से ताल्लुक़ था। तो इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ से कलेमतुल्लाह अल-उलिया के ज़ेर एहतमाम कई किताबें शाये हुई, जिनमें शख्सियत देखी किताबों के नाम और सब बहुत सारी किताबें हैं, उनके नाम से लोग वाकिफ़ हैं, रेख्ता तो भी मौजूद हैं। शख्सियत नबवी ये उन्वानात हैं, फ़तह मक्का, हज्जतुल वदा, वफ़ात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशरा मुबश्शरा,
खलीफा अव्वल हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, खलीफा दोम हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, खलीफा सोम हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, खलीफा चार हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन और जवानी, मक्की ज़िंदगी, बायत अक़बा, हिजरत, रियासत, बद्र व उहद, अहज़ाब और सुलह हुदैबिया, खैबर और मुअता और हसन, ये इन किताबों का मैं ख़ासतौर से जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये बच्चों के लिए, उन लोगों की तारुफी लिटरेचर किताबचे नहीं। तो ये बड़ों के लिए तो लिखते ही थे, बच्चों के लिए भी उनके रसायल हैं ये। तो इनके बारे में एक तो ये है कि इनके कमर रईस साहब इनके बारे में लिखते हैं कि मजहबी होने के बावजूद लोग, प्रोफेसर कमर रईस ने इनके बारे में लिखा है कि मजमूई तौर पर मजहबी हैसियत के गलबे के बावजूद, ये जुमला बहुत अहम है, डॉक्टर ताबिश मेहदी फ़नी व अदबी अक़दार के मुतलाशी नजर आते हैं और यही वस्फ़ उनकी तारीरों की मानवियत का ज़ामिन है। उनका हल्का बहुत वसी था, अभी देख लीजिए उनकी किताबों की तफसीलात आप देखेंगे तो उससे अंदाज़ा हो। ख्वाजा हसन निज़ामी सानी से उनके बड़े गहरे मरासिम थे, गहरे ताल्लुकात थे। उन्होंने उनकी किताब के ऊपर उनकी तक़दीम लिखी और उस तक़दीम में उन्होंने जिस तरीके से जो कुछ लिखा है वो भी सुनने के काबिल है। और बस दो जुमले इससे अंदाज़ा होगा कि वो लिखते हैं कि मेरे मोहतरम दोस्त और करम फरमा डॉक्टर ताबिश मेहदी, शायद सभी के दोस्त और करम फरमा, ये उनके अल्फाज हैं ख्वाजा हसन सानी निज़ामी के। ये बात फी ज़माना अजायब रोज़गार से है, यानी कौन सी बात अजायब रोज़गार से है? शायद सभी के दोस्त और करम फरमा है। वो शायर भी और नसर निगार और अदीब भी। उर्दू तनकीद में उनका जो मकाम है, उसने उन्हें दिल्ली के अदबी जलसों, मुशायरों और इल्मी सेमिनारों की रौनक बना रखा है। उनकी एक और खूबी और खुसूसियत यह है कि वो बैक वक्त मजहब दोस्त और इंसान दोस्त इस रंग और कमाल के हैं कि नई पुरानी हर महफिल में यकसा मकबूलियत रखते हैं। ये बहुत उनका तजुर्बा, बहुत सारे रसायल की इदारत का उनका तजुर्बा, ज़िक्रा, तजल्ली और इस तरीके से तजल्ली के आमिर उस्मानी साहब जो निकालते थे, उनके बाद उसके मुआविन मुदीर रहे, मकतबा तजल्ली के मैनेजर बनाए गए। इदारा तजल्ली के 15 अखबार वहाँ से निकलता था, उसकी मुकम्मल इदारत इनके सुपुर्द की गई। देवबंदी से एक माहनामा अलीमान जारी हुआ, उसके ये मुदीर रहे। और फिर उसके बाद मरकज़ी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स में बहैसियत एडिटर एक लंबे अरसे तक काम करते रहे। माहनामा ज़िंदगी 9 में बहैसियत मौजूद एडिटर रहे। तो ये आपकी ये जुहद मुसलसल है और एक सफ़र है। और इस सफ़र में इसमें अल्लाह ताला ने इनके वक्त में जिस तरीके से बरकत अता की, वो उसकी हम समझते हैं इस वक्त जो बात कहेगी उसमें वक्त की कदर और कीमत और वक्त की पाबंदी, मनसूबाबंदी, इसका नतीजा ये था कि वो भरपूर उन्होंने काम किया, भरपूर लोगों को फ़ायदा पहुंचाया। और मैं समझता हूँ कि हमें इस मौके पर गौर करना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन्नल अब्दल मुमिन बैन मक़ामतैन, बैन अजलिन क़द मज़ा ला यदरी मल्लाहु क़ादिम व बैन अजलिन क़द बक़िया ला यदरी मल्लाहु सानी फलियतज़व्वदिल अब्दु मिन नफ्सिही लिनफ्सिही व मिन हयातिही लिमौतिही व मिन शबाबिही लिकबरिही और कमा। तो ये
उससे पहले वही है कि हर शख्स के लिए एक अय्युहन्नास इन्न लकुम निहायतन फंतहू इला निहायतिकुम व इन्न लकुम मआलिम फंतहू इला मआलिमिकुम व इन्न लकुम निहायतन फंतहू इला निहायतिकुम। तो हमारा ये है कि ये तो मैंने अभी ये हिस्सा पढ़ा, इस टुकड़ा पढ़ा, बंदे मोमिन के दो अंदेशों के बीच में रहता है। एक तो वो वक्त है जो गुजर चुका, वो नहीं जानता कि उसके साथ क्या मामला हुआ, और जो वक्त बचा है उसके बारे में भी उसको पता नहीं है कि क्या होगा। तो चाहिए कि वो जो भी वक्त मिला हुआ है, जवानी का वक्त है तो उसको गनीमत जाने, बुढ़ापा आने से पहले, मौत का के आने से पहले अपनी जिंदगी को अहमियत दे, उसको समझे। उसके आगे है अंतुम इन दुनिया खुलिक़त लकुम व अंतुम खुलिक़तुम लिल आखिरह। याद रखो कि दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई है, लेकिन तुम दुनिया के लिए नहीं बनाए गए हो, तुम आखिरत के लिए बनाए गए हो। तो इन बातों का जो लोग लिहाज रखते हैं वो अल्लाह के नज़दीक फ़ाइज़ुल मराम होते हैं, कामयाब होते हैं। और इन्हीं लोगों की ख़ुसूसियात है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब में इस तरीन लफ्ज़ों में बताया है कि मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि व मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर। ईमान वालों में वो मर्दान हक़ भी हैं कि उन्होंने अल्लाह से जिस चीज़ पर अहद किया था उसे पूरा कर दिखाया, फिर उनमें से कोई अपना ज़िम्मा पूरा कर चुका है और कोई मुंतज़िर है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी और कामयाब ज़िंदगी गुजारी। और एक शुहदा का जो मफ़हूम है, देखिए हम सब गवाह हैं, हम सब ने अभी जिक्र किया डायरेक्टर साहब ने, हम सब वहाँ कब्रिस्तान गए, उनका जनाजा लोगों ने उठाया और सब लोग शाहिद हैं, सब गवाह हैं। और उनकी गवाही क्या है? गवाही यह है कि एक मर्द हक जो है जा रहा है, उस मर्द हक को हम कंधा दे रहे हैं, ये हमारी गवाही। और हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनकी कब्र को मुनव्वर करेगा और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाएगा, उनकी सय्यात को और उनकी लग़ज़िशों को अल्लाह माफ़ फरमाएगा। और हम ये जो है उनके अहले खाना और तमाम मुताल्लिक़ीन को सब ज़िंदगी की तौफ़ीक़ अता फरमाएगा। और हम इस वक्त आखिर में मुझसे कहा गया है दुआ मज़ीद दुआए मग़फ़िरत करते हैं। ये कि अल्लाह ताला अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना व शाहिदिना व गाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना व अहय्यि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु बिल ईमान। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला खैरिल ख़ल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ठीक है।